Longding in Arunachal Pradesh has been in the news recently for all the wrong reasons, be it insurgency, abductions or drug abuse. However, there are also developments which give hope of a bright future. Well, Team Notice Live traveled to the district to bring this exclusive story. Prime Minister Modi's call for cultivation and consumption of millet has further encouraged the farmers in the district to take to the production of the ancient grain with an added zeal. Farmers in the villages of Longding district have been traditionally millet growers, while the cultivation season starts with the sowing of seeds in the month of January, which is harvested in the month of June and July. 14 to 15 varieties of millets are grown by the farmers in the district. Now, with the United Nations declaring 2023 as International Year of Millet, the Agricultural Department in Longding, in association with the Longding District Administration and Arunachal Pradesh government, has taken special initiative for cultivation of millet in the district. Well, our correspondent Ripunja Das brings you this exclusive report. We all know that Longding district in Arunachal Pradesh has recently hit the headlines for all the wrong reasons, right from growth of insurgency, narcotics, and what all. But we also know that here the people are very hardworking, and the farmers, particularly, they rely a lot upon various type of agricultural produce. One of them is millet, and coinciding with the International Year for Millet, as India has also adopted it as a millet year, production of millet is very much encouraged by the agriculture department here in Longding district of Arunachal Pradesh. As you can see, that occasion like Sarkar Aapke Dwar, which is an initiative of the Pema Khandu government to bring the government close to the people. Occasions like this one provide an ample opportunity for the department to showcase their produce and the techniques, the methodologies involved behind production of millet. We have the some of the officials of the agriculture department would like to interact with them and know as to how they are encouraging the millet growers here so that they can enhance their production and go for further quality production. It's a nodal agency which promote DNRLM in the grassroots level. Actually, sir, DNRLM is a flagship program of Ministry of RD, Rural Development, and basically it's a program which encourage self-help group. Like we build institutions of women who are basically comes from poverty, and it's a program which eliminate poverty, as well as how I would like to say it's by building their capacity and also promoting their livelihoods, sustaining their livelihoods. And as coming to your question, sir, as we know, this year has been declared as International Millets Year, and understanding the importance of millets, it's a very if we see, it's a benefit to our health. It's very nutritious, and when we see ये बीमारों के लिए भी बहुत ठीक है. अगर बीमार हजार होगा तो डायबिटिक पेशेंट के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए. And also, sir, we'd like to say how we promote them. We also do convergence with line departments, be it agriculture. Also, we have conducted various awareness programs seeing the importance of this millet production. Also, our SAGs, they come cumulatively, collectively, they cultivate मिलेट्स. एंड ऑल्सो अभी हमारा दीदियाँ काफ़ी प्रोडक्ट्स के इम्पोर्टेंस जानते हुए उन लोग ने अपने लेवल में जो पोरेज होता है वेराइटीज़ लाइक इनोवेटिव वे में इनिशिएटिव लिया है कि दे हैव प्रिपेयर्ड पोरेज, ऑल्सो लड्डू जो होता है, फ्यू स्वीट बॉल्स. हम जैसे जानते हैं लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में टोटल 14 या 15 वैरायटी का मिलेट्स प्रोड्यूस होता है. यहाँ में भी आप लोगों ने रखा है वेरियस टाइप्स ऑफ मिलेट्स. तो मिलेट्स को एक्चुअली कैसे खाते हैं, कैसे इसका हेल्थ इश्यूज में कैसे इसको बेनिफिशियल है, थोड़ा बताइए. तो सर,
ये जो मिलेट्स हम ये जो है जम प्लाजम ना रॉ प्रोडक्ट है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग हार्वेस्ट करने के बाद ऐसा पाउडर फॉर्म में लेके आता है, तो इसको और फर्दर हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं। देन इन सिंपल वर्ड्स ऐसा है कि हम लोग जैसे कि गेहूँ व्हीट है ना, उसको जैसे प्रोसेस करता है एग्जैक्टली वी कैन डू लाइक दैट फॉर मिलेट्स ऑल्सो। तो उसमें से हम लोग जो है इसको राइस जैसे बना के खा सकते हैं, या तो बिस्किट, देन सूजी, ये जो भी है जैसे कि राइस या व्हीट से जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनते हैं, हम लोग मिलेट से वही प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग के पास आज ये सेल्फ हेल्प मदर्स लोग है, उन लोग ने उसका बाय प्रोडक्ट बना के डिस्प्ले के लिए लेके आया है। आप लोग काइंडली उन लोग का भी हाँ, सामान। तो इसका मतलब इससे हेल्थ इश्यूज में क्या क्या मैंने सुना है, इसमें कोई ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है, ऐसा कुछ है क्या क्या बेसिक? हाँ सर, आप ये मिलेट्स का जो हेल्थ बेनिफिट्स है ना सर, बहुत सारा है। आप लोग उसको काइंडली देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्प्ले में लिख के डिस्प्ले कर दिया है। और ये एक्चुअली सर ये है कंपेयर टू राइस एंड व्हीट, मिलेट्स का हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको पब्लिक लोग इतना मालूम नहीं होता है, इसलिए हम लोग ने अवेयरनेस करके उन लोग का हेल्थ बेनिफिट्स को, एक्चुअली हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हम लोग ज़्यादा एम्फेसाइज करता है मिलेट्स प्रोडक्शन। आप लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के एक मिलेट कल्टीवेटर है, एक फार्मर है, तो ये मिलेट आप लोग कैसे प्रोडक्शन करते हैं, कब कब आप लोग इसको मैंने किस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, इसको थोड़ा बताइए। तो एक्चुअली हम लोग का जो जूम कल्टीवेशन में अभी जूम कल्टीवेशन का जंगल क्लियरेंस का शुरू हो गया, हम लोग का ये महीना से ही शुरू हो गया। तो इसको बर्निंग किया जाता है। आफ्टर बर्निंग मैंने हम लोग का फरवरी या मार्च में इसका सोइंग करते हैं। तो ये जून जून महीने के आसपास में इसका हार्वेस्ट हो जाता है। तो इसका ये 3-4 महीना के अंदर में ही इसका प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो चलते हैं। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में ट्रेडिशनली लोग मिलेट का खेती करते हैं, तो अभी जैसे आप लोग को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मदद मिल रहा है, तो किस तरीके से आप लोग का प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, ग्रोथ हुआ है? डेफिनेटली इसका जो प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन यील्डिंग में तो ज़्यादा इंकरेजमेंट हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग को ये साइंटिफिक मेथड को एडॉप्ट करने में फार्मर्स लोग को थोड़ा सा मतलब दिक्कत तो आ रहा है, क्योंकि हम लोग मतलब लॉन्ग एज से ही हम लोग का जूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो प्रैक्टिस है उसको लोग जो मैंने छोड़ना नहीं चाह रहे, उसी मेथड में अभी चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग धीरे धीरे फार्मर्स लोग भी आगे अब आ रहे हैं मैंने जो साइंटिफिक मेथड को एडॉप्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली इसका जो प्रोडक्शन में बढ़ावा देंगे। और सर हम लोग जो मिलेट जो पहले जो मतलब ये वाला खेत से लाना पड़ता है, और ऐसे ला के फिर हम लोग जो घर में मतलब खोदना पड़ता है, खोद के फिर इसको ऐसे पहले सबसे पहले ये, और सेकंड टाइम में ये खोद के फिर इसको पाउडर बना लेता है। फिर पाउडर बना के फिर इसको मतलब ये लड्डू है और ये अलग मतलब 2 चीज़ का, और ये खीर बनाया 2-3 किस्म का बनाता है। तो इसको खाने से लोगों में क्या मैंने हेल्थ इश्यूज में क्या क्या मदद मिलता है? जिसमें हम लोग का ये हम लोग कुछ मेडिसिन नहीं मिलाते, ये हम लोग का प्योर है, तो इससे हम लोग का बहुत कुछ बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस हो पाएगा। तो हम लोग का ये कुछ जैसे कि तो हमने बेचा, जैसे हम लोग मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग का ये प्योर लोकल चीज़ है, तो इससे हम लोग का ये घुटना ये सब कुछ बीमारी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत कुछ लाई थी, तो अभी तो बहुत कुछ बिक भी गया है, अभी थोड़ा बचा हुआ है। तो अभी हम लोग ये फर्स्ट टाइम है, तो और आगे जाके हम लोग बहुत कुछ करेंगे। तो अभी हम लोग का इतना फैसिलिटी भी नहीं है, तो हम लोग का यहाँ पे अभी हम लोग कोशिश ही कर रहा है, तो आगे जाके हम लोग बहुत कुछ करेंगे, और वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अभी क्या क्या बीमारी के लिए और ये शुगर के लिए भी हम लोग अभी यही यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत कुछ इसको मतलब ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए या लंच के लिए आजकल हम लोग ये शुगर बीमारी लोग इसको ही यूज़ करते हैं। इस बारे में आप लोग क्या करें, क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? अभी फ़िलहाल मार्केटिंग का है, बहुत थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोडक्शन तो ह्यूज है और उसको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा जो तकलीफ़ है उसका तो हम लोग मैंने सिलसिला अभी जारी कर दिया है, अभी स्टार्ट किया हुआ है। इसमें अभी हम ये मैंने जनता से भी और सभी से हम अनुरोध करता हूँ कि असम बहुत सामने में है,
हम लोग से ज़्यादा 50-60 किलोमीटर का दूर में है। तो अभी हम ये चाहता है कि कोई भी प्रोसेसिंग माने यूनिट और असम का कोई भी कंपनी यहाँ में आके हम लोग का जो मिलेट्स है उसको अवेल कर सकता है। और इसका प्रोडक्शन इतना हाई है तो इसको हम लोग ये सोच रहा है कि अभी वो लोग ये कंपनी को ऑफ करें और इसको प्रोसेस करके सारे जगह में इसको माने एक्सपोर्ट करा सकता है। Thank you. And this is why the Agriculture Department in Longding district, with assistance from the administration here, from the government agencies, is encouraging production of various types of millets by the hard-working farmers of Longding district of Arunachal Pradesh. With camera person Praneep, this is Ripunjay Das reporting from Longding in Arunachal Pradesh for Northeast Live.